Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all students to MD CAT session 2020. So today our first lecture is about organic chemistry, chapter number 7 in FSC part 1, second book, and according to UHS syllabus unit number 1 of organic chemistry. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आइसोमरिज्म एंड केमिकल रीजेंट्स लाइक न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, फ्री रेडिकल्स एट्सेट्रा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, इस बारे में सबसे ओल्ड कंसेप्ट इज वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी वाज गिवन बाय बर्जीलियस इन 1815। इसको बर्जीलियस कंसेप्ट भी कहते हैं। इसके मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ओनली सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग थिंग्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी because in living things there is mysterious force called vital force which is responsible for formation of organic compound in living things. This theory was rejected in 1828 by Frederick Wöhler, who prepared the first organic compound urea in laboratory by heating inorganic compound ammonium cyanate NH4CNO. On heating is converted into urea. Urea was considered as organic compound because it was obtained from the feces of animals. तो फ्रेडरिक वोलर ने ये कंपाउंड सबसे पहले लेबॉरेटरी में तैयार करके इस थ्योरी को रद्द कर दिया। तो इस तरह मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज the compounds of carbon and hydrogen and their derivatives are called organic compounds. इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, मसलन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड. They contain carbon but they are not organic compound. And there are some compounds which do not contain carbon but still they are organic compound, like hydrazine N2H4. It has no carbon in it but it is organic compound. Organic compound on the basis of structure are classified into different classes. Classification of organic compounds. Mainly organic compounds are of two types. These compounds are of two types. नंबर एक एसाइक्लिक या एलिफैटिक कंपाउंड्स या ओपन चेन कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म द ओपन चेन। फॉर एग्जांपल N-ब्यूटेन, isobutane, these are example of open chain compounds. These acyclic or open chain compounds are further classified into two types. Open chain may be straight chain या it may be branched chain. ये N-butane is example of straight chain compound and isobutane is example of branched chain compound. ये open chain compound दो तरह के हैं, straight chain compound as well as branch chain compound. Second type of organic compound is cyclic compounds. Cyclic compounds are the
compounds in which carbon atoms are linked together to form the closed chain are called cyclic compounds. Cyclic compounds are of two types. These are of two types. नंबर एक होमोसाइक्लिक कंपाउंड या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड इन विच रिंग इज कंपोज्ड ऑफ ओनली कार्बन एटम आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड. फॉर एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन, ऐसे कंपाउंड के नाम के साथ प्रीफिक्स साइक्लो यूज़ करते हैं. साइक्लोब्यूटेन, इनमें रिंग कंटेन्स ओनली कार्बन एटम, इससे दीज आर आल्सो नोन एज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स. एंड दीज होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. ये फर्दर दो तरह के हैं. ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स. ये फर्दर दो तरह के हैं. नंबर एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड. एलिसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे होमोसाइक्लिक कंपाउंड whose properties resemble the aliphatic compounds are called alicyclic compounds. For example, cyclopropane is example of alicyclic. Cyclobutane is example of alicyclic compound. Cyclohexane is example of alicyclic compound. And second type is aromatic compounds. Aromatic compounds are the compounds या cyclic compound, homocyclic compound which contain at least one benzene ring are called aromatic compounds. For example, ये benzene itself is aromatic compound. Aromatic compound may contain one benzene ring या more than one benzene ring. इसी तरह phenol is also known as aromatic compound. Aniline is also example of aromatic compound. या aromatic compound may contain two or more rings. For example, in naphthalene, two benzene rings are fused together. Such homocyclic compounds which contain at least one benzene ring are known as aromatic compounds. Second type of cyclic compound is heterocyclic. Second type of homocyclic cyclic compound is heterocyclic compounds. Hetero means different. तो such cyclic compound in which cycle या ring contain at least one atom other than carbon atom is known as heterocyclic compound. For example, pyrrole. पाइरोल में रिंग के अंदर एक एटम नाइट्रोजन कार्बन से डिफरेंट है. इसी तरह फ्यूरान, इसमें भी एक एटम ऑक्सीजन कार्बन से मुख्तलिफ है. थायोफीन या सल्फर कार्बन से मुख्तलिफ है, रिंग के अंदर एक एटम कार्बन से डिफरेंट. इसी तरह पिरिडीन में भी एक एटम रिंग के अंदर कार्बन से डिफरेंट है. सच कंपाउंड्स आर नोन एज हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड and the atom which is other than carbon in the ring is known as heteroatom. In mostly compounds, heteroatom is nitrogen, oxygen or sulfur. Okay. Heterocyclic compounds are further classified into two types. Heterocyclic compound मज़ीद दो तरह के हैं, like homocyclic compounds. Heterocyclic compounds are of two types. ये फर्दर दो तरह के हैं. नंबर एक एलिसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड एंड एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड.
such heterocyclic compound whose properties resemble with aliphatic compounds are called alicyclic compound. For example, tetrahydrofuran, THF, tetrahydrofuran is example of alicyclic heterocyclic compound. Piperidine is example of heterocyclic alicyclic compound. Second type is aromatic heterocyclic compound. अभी हमने डेफिनेशन की कि वो कंपाउंड एरोमेटिक हैं विच कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग. बेंजीन रिंग इज एग्जांपल ऑफ होमोसाइक्लिक. अब हेटेरोसाइक्लिक कैसे एरोमेटिक हो सकते हैं? इनमें बेंजीन रिंग मुमकिन नहीं है. हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कैन बी एरोमेटिक. ये एरोमेटिसिटी में बेंजीन का होना ज़रूरी नहीं है. अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल्स के मुताबिक ऐसा कंपाउंड एरोमेटिक कहलाता है विच इज़ साइक्लिक इन नेचर, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड, हैविंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स इज एरोमेटिक इन नेचर. तो एरोमेटिसिटी के लिए इन 4 कंडीशंस का होना ज़रूरी है. कंपाउंड को साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए और पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4n+2 हो. वेयर n मे बी 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. अगर n की वैल्यू जहाँ 0 पुट करें तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, 1 पुट करें तो 6, 10, इसी तरह 14, 18 एंड सो ऑन. तो सच कंपाउंड्स विल बी एरोमेटिक विच इज़ प्लेनर, साइक्लिक, कॉन्जुगेटेड, हैविंग 2, 6, 10, 14, 18 पाई इलेक्ट्रॉन विल बी एरोमेटिक. तो जो कंपाउंड इन चारों कंडीशन को फुलफिल करेगा दैट विल बी एरोमेटिक इन नेचर. साइक्लिक मीन्स क्लोज चेन कंपाउंड, प्लेनर मीन्स जिसमें रिंग के अंदर सारे एटम एक ही प्लेन में हों, और कॉन्जुगेटेड मीन्स जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट पोजीशन पे हों. ये कॉन्जुगेटेड मीन्स ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड दूसरे डबल बॉन्ड की अल्टरनेट पोजीशन पे हो, ट्रिपल बॉन्ड दूसरे ट्रिपल बॉन्ड की अल्टरनेट पोजीशन पे हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हों, या डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे हों, डबल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे हों, डबल बॉन्ड और अनपेयर्ड अल्टरनेट पोजीशन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट पोजीशन पे हों. सिमिलरली ट्रिपल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट पोजीशन पे हों, या ट्रिपल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज या ट्रिपल बॉन्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अल्टरनेट पोजीशन पे हों. तो जिस मॉलिक्यूल में इस तरह की बॉन्डिंग होगी दे आर नोन एज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल. अब मिसाल के तौर पर पाइरोल इज एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड. पाइरोल इन चारों कंडीशन को फुलफिल करता है. साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, और कॉन्जुगेटेड भी है. पाई इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 6 है. सो इट इज़ एरोमेटिक इन नेचर. इसी तरह फ्यूरान इज आल्सो एरोमेटिक इन नेचर. ये भी चारों कंडीशन को फुलफिल करता है. साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है और पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इसमें भी 6 है. इसी तरह थायोफीन इज आल्सो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. इसमें भी कॉन्जुगेटेड भी है, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 6 है. इसी तरह पिरिडीन इज आल्सो एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. ये भी साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है और पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इसमें भी 6 है. तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी मेनली 2 तरह के हैं, एसाइक्लिक एंड साइक्लिक. एसाइक्लिक कंपाउंड 2 तरह के हैं, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन कंपाउंड. साइक्लिक कंपाउंड 2 तरह के हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक. होमोसाइक्लिक 2 तरह के हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी 2 तरह के हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज फंक्शनल ग्रुप.
किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में एक्टिव साइट इज नोन एज या एक्टिव ग्रुप इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक एटम या ग्रुप ऐसा होता है विच शो द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। मिसाल के तौर पर अगर कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो इस ग्रुप को कोई नेम नहीं देते, ऐसे कंपाउंड अल्केन कहलाते हैं। इसी तरह अगर कंपाउंड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो दिस फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड डबल बॉन्ड एंड कंपाउंड्स आर कॉल्ड अल्कीन्स। अगर कंपाउंड में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो तो फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड ट्रिपल बॉन्ड, कंपाउंड इज कॉल्ड अल्काइन। इसी तरह अगर कंपाउंड में एक्स ग्रुप हो तो इट इज कॉल्ड हैलोजन ग्रुप और कंपाउंड इज कॉल्ड हैलो अल्कीन या अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में हैलोजन ग्रुप में बी अटैच टू प्राइमरी कार्बन। अगर ये प्राइमरी कार्बन से अटैच हो तो ग्रुप इज हैलो ग्रुप, कंपाउंड इज कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसी तरह अगर हैलोजन ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो तो दिस ग्रुप इज हैलो ग्रुप, कंपाउंड इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अगर हैलोजन ग्रुप टर्शरी कार्बन से अटैच हो तो ग्रुप इज हैलो ग्रुप, कंपाउंड इज कॉल्ड टर्शरी अल्काइल हैलाइड। इसी तरह अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रॉक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो तो ऐसे ग्रुप को हाइड्रॉक्सी ग्रुप कहते हैं या हाइड्रॉक्साइल ग्रुप, और ऐसे कंपाउंड जिसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप पाया जाए दे आर कॉल्ड अल्कोहल या अल्कानोल। अल्कोहल भी तीन तरह के हो सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी। अगर OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच हो तो दिस अल्कोहल इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। अगर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप सेकेंडरी कार्बन से अटैच हो तो इट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप टर्शरी कार्बन से अटैच हो तो इट इज कॉल्ड टर्शरी अल्कोहल। इसी तरह अगर कंपाउंड में NH2 ग्रुप हो तो इट इज कॉल्ड अमाइनो ग्रुप। और ऐसे कंपाउंड जिसमें अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट हो दे आर कॉल्ड अल्काइल अमाइन या अमाइंस। ये भी तीन तरह के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी, लेकिन इनकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट है। अगर अमाइनो ग्रुप एक कार्बन से अटैच हो तो इस अमाइन को प्राइमरी अमाइन कहते हैं। अगर अमाइनो ग्रुप दो कार्बन से अटैच हो नाइट्रोजन तो इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी अमाइन। अगर नाइट्रोजन तीन कार्बन से अटैच हो तो इट इज़ कॉल्ड टर्शरी अमाइन। अगर अमाइनो ग्रुप का नाइट्रोजन कार्बन से अटैच हो बाय डबल बॉन्ड तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड इमाइनो ग्रुप और सच कंपाउंड आर कॉल्ड इमाइन। इसी तरह अगर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन दो कार्बन से अटैच हो तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड ईथर ग्रुप एंड कंपाउंड इज कॉल्ड ईथर। अगर ये ऑक्सीजन दो कार्बन से अटैच हो इन साइक्लिक चेन तो दिस ग्रुप इज ईथर ग्रुप, कंपाउंड इज कॉल्ड एपॉक्साइड। इसी तरह अगर हम इनके जनरल फार्मूलाज देखें, अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, अल्कीन का जनरल फार्मूला CnH2n, अल्काइन का जनरल फार्मूला CnH2n-2, अल्काइल हैलाइड का जनरल फार्मूला CnH2n+1x। लेकिन ये उन कंपाउंड के जनरल फार्मूला विच कंटेन वन फंक्शनल ग्रुप। इसी तरह अल्कोहल का जनरल फार्मूला CnH2n+2O, अमाइन का जनरल फार्मूला CnH2n+3n। इसी तरह ईथर का जनरल फार्मूला CnH2n+2
H2N प्लस 2O। एपॉक्साइड का जनरल फार्मूला CnH2NO। ठीक है। इसी तरह अगर किसी कंपाउंड में ये C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड H ग्रुप हो, दिस ग्रुप इज कॉल्ड फार्माइल ग्रुप। और ऐसे कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप पाया जाए दे आर कॉल्ड एल्डिहाइड्स। इनका जनरल फार्मूला CnH2NO। अगर कंपाउंड में CO के दोनों तरफ कार्बन अटैच हो तो इट इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। और ऐसे कंपाउंड अल्कानोन या कीटोन कहलाते हैं। इनका जनरल फार्मूला भी CnH2NO। अगर किसी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड OH ग्रुप हो तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोक्साइल ग्रुप। और ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बोक्साइल ग्रुप पाया जाए दे आर कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। इनका जनरल फार्मूला CnH2nO2। अगर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप की जगह OR ग्रुप हो, R इज अल्काइल ग्रुप, तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड एस्टर ग्रुप। और ऐसे कंपाउंड एस्टर्स कहलाते हैं। इनका जनरल फार्मूला भी CnH2nO2। अगर इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के OH की जगह NH2 ग्रुप अटैच हो तो इट इज कॉल्ड एसिड अमाइड ग्रुप। और ऐसे कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप पाया जाए दे आर कॉल्ड एसिड अमाइड। इसी तरह अगर CO की जगह हैलोजन अटैच हो तो इट इज कॉल्ड एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड ग्रुप और सच कंपाउंड आर कॉल्ड एसिड हेलाइड। अगर दो कार्बोनाइल ग्रुप के दरमियान ऑक्सीजन अटैच हो तो दिस ग्रुप इज नोन एज एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप। और सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एसिड एनहाइड्राइड। इसी तरह अगर किसी कंपाउंड में SH ग्रुप पाया जाए दिस ग्रुप इज कॉल्ड मरकैप्टो ग्रुप। और ऐसे कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप पाया जाए दे आर कॉल्ड SH। सच कंपाउंड आर कॉल्ड थायोल या थायो अल्कोहल। इसी तरह अगर किसी कंपाउंड में NO2 ग्रुप पाया जाए दिस ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्रो ग्रुप। और ऐसे कंपाउंड को नाइट्रो अल्केन्स कहते हैं। अगर किसी कंपाउंड में ONO अटैच हो, ये NO2 ग्रुप may be attached to carbon through nitrogen या it may be attached to carbon through oxygen। अगर ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज हो तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड नाइट्राइट ग्रुप। and such compounds are called alkyl nitrite। इसी तरह अगर कंपाउंड में CN ग्रुप हो दिस ग्रुप इज कॉल्ड सियानो ग्रुप। और ऐसे कंपाउंड जिसमें सियानो ग्रुप पाया जाए दे आर कॉल्ड अल्काइल नाइट्राइल। ये सियानो ग्रुप में बी प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड एज वेल एज इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हो जैसे KCN है तो फिर इसको साइनाइड कहते हैं। अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो तो फिर इट इज कॉल्ड नाइट्राइल। तो यहाँ ये कार्बन के थ्रू भी अटैचमेंट हो सकती है या इट मे बी अटैच थ्रू
नाइट्रोजन, अगर ये नाइट्रोजन के थ्रू अटैच हो तो इट इज़ कॉल्ड आइसोसियानो ग्रुप। और ऐसे कंपाउंड जिसमें आइसोसियानो ग्रुप हो दे आर कॉल्ड आइसोनाइट्राइल। इसी तरह अगर कंपाउंड में CNO ग्रुप हो तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड सायनेट ग्रुप, और ऐसे कंपाउंड अल्काइल सायनेट कहलाते हैं। तो ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं। ये फंक्शनल ग्रुप ही किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म इज ऑफ टू टाइप्स, इसकी दो अकसाम हैं। नंबर एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, नंबर टू स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म 5 किस्म के हैं। These may be chain isomers, position isomers, functional group isomers, metamers and tautomers। स्टीरियो आइसोमर्स आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के हैं। नंबर एक कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, नंबर टू कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। These configurational isomers are of two types। इसकी फर्दर टू टाइप्स हैं। नंबर एक जिमेट्रिक आइसोमर्स, नंबर टू ऑप्टिकल आइसोमर्स। कन्फर्मेशनल आइसोमर भी दो तरह के हैं। These may be eclipsed कन्फर्मेशन या स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। ये जिमेट्रिक आइसोमर्स फर्दर दो किस्म के हैं, सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर्स भी दो तरह के हो सकते हैं, दी डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। तो इन आइसोमरिज्म की ये टाइप्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि चेन आइसोमर्स क्या हैं, पोजीशन आइसोमर क्या है, मेटामर्स क्या हैं, फंक्शन ग्रुप आइसोमर क्या है, टाटोमर्स क्या हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म क्या होती है, इसकी टाइप्स कॉन्फ़िगरेशनल कन्फर्मेशनल आइसोमर क्या है, इनकी फर्दर टाइप्स जिमेट्रिक आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स, इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन, ये इनकी डिटेल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।